قابل قدر ایمانی بھائیو، بزرگو، دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا کرم، اس کا شکر، اس کا احسان کہ اس نے مبارک دن جمعہ عطا فرمایا، اور بہت بڑا کرم یہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ آج تقریباً چھٹا روزہ ہے، 7ویں تراویح ہے۔ دن آنے میں، انتظار کرنے میں کسی چیز کا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ موت کا انتظار آدمی کرتا ہے۔ الاشداء من الموت، موت سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے جب کسی چیز کا دن کا انتظار کیا جاتا ہے۔ بہرحال انتظار کرتے کرتے وہ گھڑیاں مبارک دن آ گئے۔ اب وہ مبارک دن جو اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آئے تھے، یہ تو ہر بندہ اپنے آپ جانتا ہے کہ ہم ان مبارک گھڑیوں میں کیا کیا عمل کر رہے ہیں اور کون سے عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے کون سے عمل ہیں جس سے اللہ اور اس کا نبی خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہم واقعی اس مبارک مہینے میں اس مطابق زندگی گزار رہے ہیں جس کے مطابق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حکم دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ نفلوں کی عبادت کا ثواب فرضوں کے برابر مل جائے گا اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب انسان دنیا کے اندر پڑ جاتا ہے اور صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کو دنیا مل جائے، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم کی آیت میں بتانا فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہماری دنیا کو بھی اچھا کر دے، اے اللہ ہماری دنیا کو اچھا کر دے۔ صرف جو آدمی دنیا مانگتا ہے تو اللہ کہتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ چاہے کتنے ہی پاپڑ دنیا میں پھیل لے، پوری زندگی اپنی دنیا کے اندر گزار دے، لیکن وہ اللہ کی عبادت کی طرف نہ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق زندگی نہ گزارے، ہم اس کو دنیا تو ضرور دے دیں گے، ہم اس کو دنیا ضرور دے دیں گے اس کی تمنا کے مطابق، آرزو کے مطابق، لیکن اگر وہ صرف دنیا ہی چاہتا ہے، وہ صرف دنیا ہی مانگتا ہے، تو آخرت میں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں، کوئی چیز ہاتھ لگنے والے نہیں۔ ہم یہ سوچیں اور غور کریں کہ آج 6 روزے گزرنے والے ہیں تقریباً، ہم نے کتنے اعمال ایسے کیے ہیں جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیے ہیں، جو نبی کو خوش کرنے کے لیے کیے ہیں۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہمارا ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ کتنا قیمتی ہے اس مہینے کے اندر، اس کے ایک ایک گھڑیاں کتنی قیمتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر تو ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ روزے دار کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزے دار نہ فحش باتیں کرے، یہاں تک کہ گندی باتیں، بری باتیں کرنے سے بھی منع فرما دیا، اور نہ جہالت کی باتیں کرے، اور آگے فرماتے ہیں اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے، جھگڑا کرے، اس سے آپس میں بھیڑے یا اسے گالی دے، تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے، اس کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ میرا روزہ ہے، میں اس چیز سے دور ہو جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں نے لکھا ہے، کتابوں کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ روزے کے اندر بہت کم بولنا چاہیے،
जरूरत के वक्त इंसान को बोलने की जरूरत है। अगर कोई दीन का मसला पूछ रहा है और कहे भाई नहीं जी रोजे में तो मना किया है बोलने के लिए, अब ऐसा भी नहीं है। जो चीज जरूरत की है ज्यादा बोलने को मना किया है। ज्यादा खाना भी नुकसान देता है, ज्यादा सोना भी नुकसान देता है। गोया कि पता ये चलता है सेहत के लिए जो भी चीजें होंगी अगर वो जायद हो जाएंगी, अल्लाह की हुदूद से आगे बढ़कर चली जाएंगी तो वो बर्बाद तो हो जाएंगी, हम उससे बर्बाद तो हो जाएंगे। हमारे जिस्म को भी नुकसान देंगी, हमारे आज़ा को भी नुकसान देंगी। लेकिन एक लिमिट में अगर इंसान चलता है, एक हुदूद में रहकर चलेगा तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह तबारक व तआला उसको कामयाब फरमाएंगे और कामरान भी जरूर फरमाएंगे। बहरहाल मैं कह रहा था कि जो लोग ये चाहते हैं कि उनको दुनिया मिल जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उनको दुनिया दे देगा, लेकिन आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। आगे अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत के अंदर इरशाद फरमाते हैं वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। और जो लोग ये चाहते हैं ऐ अल्लाह हमारी दुनिया को भी अच्छा बना दे और हमारी आखिरत को भी अच्छा बना दे और हमें जहन्नम के आज़ाब से बचा दीजिएगा, तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों सोचने की जरूरत यह है जब उसकी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी, इस दुनिया की जिंदगी के अंदर जिंदगी गुजारने के बाद में तो वो आखिरत में भी कामयाब होगा और दुनिया में भी कामयाब होगा। तो हमें जब भी अल्लाह से दुआ मांगनी है तो दोनों लफ्जों को मांगना है ऐ अल्लाह हमारी आखिरत को भी अच्छा कर दे और हमारी दुनिया को भी अच्छा बना दे। पता ही चलता है जो लोग दुनिया को भी अच्छे की तो दुआ करते हैं और आखिरत को भी अच्छे की दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनको दोनों चीजों से नवाजते हैं और दोनों चीजों से कामयाब और कामरान फरमाते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों अभी कुछ हालात देखे गए और पता चला कि बहुत से इंसान इस वक्त ऐसे हैं आपके घरों के अंदर मौजूद होंगे, अपने अपने घरों का जायजा ले जाकर कि आज 6 रोजे हो चुके हैं उनका एक भी रोजा नहीं है। नवाफिल तो दूर की बात है, वो फराइज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर नहीं आए हैं, एक टाइम की नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए हैं। आप इस महल्ले का सर्वे कीजिएगा, आपको पता चलेगा, घर घर जाकर देखिएगा और जायजा लीजिएगा खुद सबसे पहले अपने घर का, अपने अंदर कि हमारे घर के अंदर जिस दिन से रोजे शुरू हुए हैं उस दिन से कितने बच्चों ने रोजे रखे हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं हमारे, कितनी औलाद ऐसी है हमारी कि उसने क्या टाइम की नमाज पढ़ी है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों हम दूसरों के शिकवे करते हैं, हम दूसरों को गालियां देते हैं, हम दूसरों को बुरा भला कहते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, जब हम अपने अंदर खुद तब्दीली नहीं लेकर आएंगे तो याद रखिएगा जब अपने आप अपने आप को नहीं सुधारेगा कोई इंसान तो वो इंसान अगर दूसरे इंसान को नसीहत करेगा तो याद रखिएगा उसका उल्टा जवाब होगा, उसकी उल्टी बात होगी। वो यही कहेगा पहले अपने घर को तो देख लीजिएगा, हजरत जी आप तो 5 वक्त नमाजी थे, आपने तो चिल्ले लगाए थे, आप तो इफ्ताह का कोर्स करके आए हैं, आप तो मौलवी साहब हैं, कुरान करीम की तिलावत करने वाले हैं, आप कितने टाइम की जमात से नमाज पढ़ते हैं, कौन सा एक इंसान है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों एक हाफिज इंसान है, एक हाफिज इंसान की तकबीर औला से नमाज पढ़ हो जाए। वो बुजुर्गाने दीन के बारे में लिखा है, रशीद अहमद गंगोही रहीमहुल्लाह के बारे में आता है किताबों के अंदर कि हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही की एक मर्तबा तकबीर औला फौत हो गई, तकबीर औला फौत हो गई। मेरे भाई बहुत अफसोस किया, बड़े रंजीदा हुए, बड़े रोए। और आज हम है कि हमारा हाल तो ये है कि अगर तरावी भी होती है तो तरावी में भी जब इमाम साहब रुकू में जाने वाले होते हैं नहीं, 1-2 सफे तो पढ़नी होते हैं, 3 सफे फिर रकात तो रुकू में तो जाएंगे तो इमाम साहब के साथ में नहीं जाएंगे, तकबीर औला के साथ में नियत नहीं बांधेंगे, बल्कि हाल क्या होगा कि जैसे ही इमाम साहब रुकू में जाएंगे फौरन रुकू में चले जाएंगे। मेरे भाइयों आपका रुकू भी नहीं पाया गया, आपको जब रुकू न मिला, बहुत से इंसान तो ऐसे होते हैं कि वहीं से नियत बांध लेते हैं,
अल्लाहु अकबर जब आपने नहीं कही है, तकबीर अवला आपने नहीं कही है, जब तक आप सीधे खड़े होकर क़याम जिसको कहा है, खड़े होने के बाद में तकबीर अवला कहने के बाद में नेक नहीं मानते हैं, जब तक आपका रुकू नहीं माना जाएगा। दूसरी बात यह है कि एक इमाम साहब रुकू में चले गए हैं, एक बंदा वहां से भग कर आता है फौरन कि मैं रकात पकड़ लूं, रकात उसको कैसे मिल जाएगी? इमाम साहब आके नेक बांधेगा, तकबीर कहेगा, उसके बाद में खड़ा होना भी है, तकबीर कहना भी है, नेक बांध के फिर रुकू में जाएगा। तो पता ये चलता है कि जब हमारी तकबीर अवला कोट हो गई, रुकू चला गया तो रकात भी चली गई और इमाम साहब का रुकू भी नहीं मिला, तो पता ये चलता है कि तीनों और चारों रकात भी जो उसने 3 रकात बाद में पढ़ी है, ये 4 इमाम के साथ में उसको लग रहा है कि मैंने इमाम के साथ में पढ़ी है, लेकिन ये नमाज नहीं मानी जाएगी। पता ये चलता है इत्मीनान के साथ में आए आदमी, रकात निकलने ये कोई बात नहीं, ये सोचने की जरूरत है, अफसोस करने की जरूरत ये है कि मैं बहुत बाद में पहुंचा, 1-2 मिनट पहले आना चाहिए था, 5 मिनट पहले आने चाहिए था। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे बुजुर्गान दीन के बारे में तो यहाँ तक आता है, एक बुजुर्ग का वाकया लिखा है कि एक मर्तबा छोटी छोटी सुन्नतों पे अमल करते थे। आज हमने इन छोटी छोटी सुन्नतों को बाले ताक रख दिया है, पसे पुष्ट डाल दिया है, जिसकी वजह से हम नाकाम और नामुराद होते चले जा रहे हैं। छोटी सुन्नत क्या थी जी? एक मर्तबा मेरे भाई एक बुजुर्ग मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। मस्जिद के अंदर दाखिल होने में जब इंसान दाखिल होता है तो पहले सीधा कदम दाखिल करना चाहिए, गलती से उल्टा कदम पड़ गया, गलती से उल्टा कदम पड़ गया। मेरे भाइयों, लिखा है कि वो काफी दिन तक रोते रहे और अफसोस करते रहे, और आज हमारा हाल तो ये है कि हम छोटी छोटी सुन्नतों को क्या बड़ी बड़ी सुन्नतों को तर्क कर रहे हैं, पसे पुष्ट डाल रहे हैं, रोक रहे हैं। हमें गौर करने की जरूरत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुक़द्दस महीना दिया है, बाबरकत महीना दिया है, कि हमें इसमें चाहिए कि हमने जितने गुनाह किए हैं, जितनी अय्यारियां की हैं, मक्कारियां की हैं, जितने पाप किए हैं, जितनी गंदगियां की हैं 11 महीने में, अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे कहा है आप आइएगा और मांगिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे को माफ फरमाएगा। कोई बंदा अगर इस रमजान के महीने में कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि अगर कोई दुआ मांगे तो उसकी दुआ कबूल ना होती हो। ऐसे हालात में तो ये चाहिए था जब मुल्क चारों तरफ से, मेरे भाइयों, मुल्क के अंदर मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा हो, मुसलमानों को शिकंजा जगड़ा जा रहा हो, मुसलमानों को बुरी नजर से देखा जा रहा हो, उनके मसाजिद महफूज नहीं, मकातिब महफूज नहीं, खानकाएं महफूज नहीं, किताबें महफूज नहीं, कुरान महफूज नहीं। ऐसे वक्त में तो हमें ये चाहिए था कि हम अपनी मस्जिदों को भर कर दिखाते। हर वक्त में हमने देखा है इसी मस्जिद के महल्ले के अंदर, इसी महल्ले के अंदर आप अगर सर्वे करें तो पता चलता है 100% में से 50% भी तरावी की नमाज नहीं पढ़ते हैं। तकरीबन आधे आदमी वो हैं जो तरावी की नमाज की वजह से तो आते ही नहीं, फर्ज भी नहीं पढ़ते और घर लेट जाते हैं। 2 घंटे, 2.25 घंटे, 1.5 घंटा तरावी होती है, गपशप में गुजार देंगे, चौराहों पे बैठ के गुजार देंगे टाइम को, नालियों के किनारे पे बैठ जाएंगे 3 घंटे, 2 घंटे, होटलों में बैठ जाएंगे, सब जगह बैठ जाएंगे। लेकिन जब इन बंदों से ये कहा जाएगा, इन नौजवानों से ये कहा जाएगा कि नमाज पढ़ लीजिएगा, तरावी पढ़ लीजिएगा, कि बदन में दर्द है, टांगों में दर्द है, हाथों में दर्द है, हमसे नहीं पढ़ी जाती, कपड़े नापाक हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, याद रखिएगा, जो बंदा अल्लाह की नेमतों को खुद ना लेना चाहे तो ऐसे बंदे को अल्लाह तबारक व तआला नेमतों से नवाजते नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उससे दूर कर देते हैं। ये जरूर है कि एक बंदे की कोशिश है कि मैं एक मिनट इसमें कामयाब बना लूं और कीमती बना लूं, तो उसको जरूरी है कि वो नंबर 1 पर, मेरे भाइयों, इस महीने के एतबार से तकरीबन 4 चीजों पर अमल करना चाहिए, और वो आखिर तक, आखिरी रमजान तक हमारा अमल होना चाहिए। नंबर 1 पर कलमा तय्यबा कसरत से पढ़ा जाए। नंबर 1 पर
कलमा तय्यबा कसरत से पढ़ा जाए, और दूसरे नंबर पर इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ा जाए। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, काम करते हुए इंसान की ज़बान हिल रही है, क्या जा रहा है अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने में, क्या जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कहने में, क्या जा रहा है अल्लाहु अकबर कहने में। जब ऊपर को चढ़ रहा है तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों अल्लाहु अकबर कह दे, नीचे उतर रहा सुभान अल्लाह कह दे। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं। जब इंसान छोटे पे अमल करता है तो फिर एक वक्त आता है कि वो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को नूरानी करते चले जाते हैं, और नूरानी करते करते वो एक वक्त आता है कि बड़ी चीजों पर भी अमल करने लगता है। लेकिन जब वो छोटी को ही छोड़ देगा, फराइज पढ़े, उसके बाद में सोचा कि 2 सुन्नतें पढ़ो, छोट नमाज पढ़ के चल दो, नफिल पढ़ने की जरूरत नहीं। याद रखिएगा जो फराइज हम पढ़कर जा रहे हैं मस्जिद के अंदर, जो नवाफिल हम पढ़कर जा रहे हैं, क्या किसी बंदे को 100% इस बात पर यकीन है कि मेरे ये फराइज जो मैंने पढ़े हैं ये वाकई अल्लाह के मुताबिक गुजारे हैं, वाकई अल्लाह के मुताबिक पढ़े हैं? मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, कोई इंसान अपनी गारंटी नहीं ले सकता अपनी नमाज की, ये अल्लाह बेहतर जानता है अल्लाह किसकी नमाज को कबूल करता है। हमारी नमाजें तो ऐसी होती हैं कि सारा हिसाब दुकानों का, कारोबार का, माल का, घर का, सब्जी का, हर चीज का हिसाब अगर आकर लगाएगा तो नमाज में लगाएगा। पूछे भाई इमाम साहब कितनी रकातें हुई हैं, तो पता चलता कि पता नहीं थी कितनी हुई है। अगर इमाम साहब को कभी गोता भी लग गया या इमाम साहब भूल गए तो ऐसा भी हुआ है, हमने खुद यहाँ पर देखा है। अभी 2 साल पहले की बात है, शुरू साल में यहाँ तरावी की एक दिन 23 रकातें हुई। कितनी रकातें हुई जी? 23 रकातें हुई। लेकिन सुई घुमाने वाले अपनी बराबर सुई घुमा रहे हैं कि भाई 20 हो रही है, हम कह रहे भाई 23 हो गई। लेकिन अब किसको कहा जाए कि भाई हमने तो अपनी सुई घुमाई है, 23 हो गई। पता ये चलता है कि रकातें याद करने के लिए जब इंसान कुरान करीम को गौर से सुनेगा तो याद रखिएगा रकात का पता होगा। लेकिन जब दिमाग कहीं होगा, जहन कहीं होगा, दिल कहीं और होगा, जिस्म मस्जिद के अंदर होगा, आगे मस्जिद के अंदर होंगे, बज़ाहिर तो हाथ पैर तो मस्जिद के अंदर होंगे, लेकिन दिमाग कहीं और होगा, तो फिर वो 1 की 2 ही बताएगा और 2 की 3 बताएगा। पता ये चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुक़द्दस महीने को और बाबरकत महीने को इसलिए दिया था कि 11 महीने हमने जितने गुनाह किए हैं हम अल्लाह से मांगे और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत पर उतर आए। 5 वक्त की 5 वक्त नमाज पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें, जिक्र व अस्कार करें, कलमा तय्यबा पढ़ें, कसरत से नंबर 1 पर कलमा तय्यबा पढ़ें, और नंबर 2 पर इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, और नंबर 3 पर जहन्नम से बरी होने का अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी चाहिए, और जन्नत की तलब करें और जन्नत को मांगना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला जो बातें कही गई हैं उन पर अमल करने वाला बनाए, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।